Friends, Dr. Kuldeep Sukhdeva is a pediatrician and is known for his proficiency in neonatal pediatric medicine and surgery. He did his MD Pediatrics from Mahatma Gandhi Institute of Medical Science, Sevagram, Wardha. He has been ex-professor of pediatrics at Jawaharlal Nehru Medical College, Wardha, associated with various congresses like Honorary Secretary of Indian Academy of Pediatric, Nagpur. He has been executive member of Academy of Medical Science, Nagpur. He has been vice president of Indian Academy of Pediatrics, member of IAP, IMA, IIC, AMS, etc. Today, Dr. Kuldeep is the director of pediatric department at Kingsway Hospital, Nagpur, which is a 300 plus bedded multi-speciality hospital, which is in fact now a milestone for the tertiary care healthcare services at Nagpur. Dr. Kuldeep's interest areas have been childhood diseases, neonatal and pediatric intensive care. So today, we Polymedians are privileged, honored to have his address on day-to-day medical care of neonates and children, and especially the challenges which we all are facing during these uncertain times and growing exponentially. So I extend my hearty welcome for you, sir, and I request you to please address all the Polymedians. Hemant sir, it is my privilege, first of all. And when you introduced me, I thought you were talking to somebody who's not me, but nevertheless, we will stick to the topic. In next 20 minutes, let us hope that all Polymedians get some idea about sitting at home and while they are all stuck at home, they get some idea of how to handle their children. So it is just not about their health. I hope that next 20 minutes we spend some time about their nutrition and also about their psychological health. I hope that I can cover all these three things. And let that medium of instruction be, as Dr. Raghuvanshi just told, a bit of Hindi and a bit of English. So the topic of day-to-day medical care of neonates and children means that we're talking about a newborn who's just born to almost an 18 years old male or female. I hope I can cover some of these basic points. Before we talk about how we treat problems or small problems which we can handle at home, let us first talk about prevention. इन तकलीफों को कैसे रोका जाए? सबसे पहले क्या हम ये तकलीफें हमारे बच्चों में आने से रोक सकते हैं? Now this is the most important thing. If we can handle the problems not coming into our home, then I guess the rest of my lecture makes no sense. तो ऐसा क्या किया जाए ताकि हमारे बच्चे बीमार ही ना पड़े, ना वो शारीरिक रूप से बीमार पड़े, ना वो दिमागी रूप से बीमार पड़े. इसके लिए हमें एक टीम बनाने की जरूरत है, माता पिता और बच्चे तीनों मिलकर. ऐसा हो नहीं सकता कि माता पिता कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं व्हाट्सएप पर, एक बेंच पे लेटे हुए हैं या बेड पे लेटे हुए और बच्चों को कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, आप पढ़ाई करिए. ऐसा हो नहीं सकता. हमें टीम बनाने की जरूरत है. इस समय जरूरत है कि उन बच्चों में जो लबालब भरी हुई एनर्जी है, उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए. इंडोर गेम्स खेलना उनके साथ में जरूरी है. हम लोग उनके साथ में बने रहना चाहिए. We should see that they continue to exercise at home. Now the internets are on, we can see there are so many videos going on. But parents themselves and father himself can tell how the sit-ups are done and how push-ups are done. So exercises are done continuously, morning and evening. Some exercises, some skipping, something they should do. The body should feel better. They should eat a lot of good food. आयुष मंत्रालय ने अभी बताया है कि इस तरह का भोजन करने से शायद आपकी इम्यूनिटी अच्छी रह सकती है, उसका पालन कर सकते हैं. मैं कहना चाहता हूं कि हरी सब्जियां अभी सबके द्वार तक पहुंच रही है, लॉकडाउन में भी पहुंच रही है. हैव लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, हैव लॉट ऑफ वाटर. Summer has begun all across India. Here at Nagpur, I can tell you, temperatures have gone beyond 41 degrees Celsius. So have lot of water and lot of vegetable you should have. Fruit you may have, you may not have. It's perfectly all right. Exercises, food, and the last, in spite of the fact that helps are not coming and maids are not reaching your home, see that your houses are clean. Many diseases are not because of infections coming from viruses and
and bacteria, many of these diseases actually come from the dust itself. You see that we do the dusting, cleaning, we create a team. मेरे एक डॉक्टर परिवार को मैं जानता हूँ, जब वो घर पे बात कर रहे थे कि अब सफाई कैसे की जाएगी, तो 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों टीनेजर्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने पर्चियां निकाली। फिर कपड़े कौन धोएगा, कमरे कौन धोएगा, साफ करेगा, डस्टिंग कौन करेगा, पर्चियां निकाली है। लोग बोर हो जाते हैं, चाहिए तो पर्चियां हर 7 दिन बाद बदलते रहिए, बट देयर मस्ट बी डस्टिंग। यू कैन नॉट लीव इट दैट सब लॉक्ड इन है, कोई अपने घर पे मेहमान आने नहीं वाले हैं तो कैसा भी घर रखें तो चल जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। सो क्लीनलीनेस, एक्सरसाइज और फूड, अच्छा भोजन, ये 3 चीजें हैं, ये 3 मंत्र हैं जो हमको बीमारियों से दूर रखते हैं। Nevertheless, let us talk about common ailments which can afflict neonate, an infant, a toddler, a school-going child, and so on. So, एक न्यूबॉर्न आपके घर पे है, एक नवजात अर्भक बालिका आपके घर पे है, तो एक समस्या बनी रहती है कि आपके पीडियाट्रिशियन के साथ आपका मिलना हो नहीं रहा है, और बहुत सारी समस्याएं ऐसे नजर आती हैं जो लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। मोस्टली तो मैं ये बता सकता हूँ कि कोई अगर यह नवजात एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पर है, माता के दूध पर है, तो 99.99% यह बालक बालिका कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। ये बैकग्राउंड के साथ में आप आराम से निश्चिंत होकर आप घर पे रह सकते हैं। पर भी कुछ समस्याएं नजर आती है जो जिसके कारण हमें लगता है डॉक्टरों से मिलने की जरूरत बनती है। उन समस्याओं के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। सबसे पहले है उल्टियां। डॉक्टर साहब दूध पिलाए कि उल्टी कर देता है, दूध पिलाए कि उल्टी कर देता है। अगर हमने पास में रख लिया और हम लोग उसकी पीठ दबा रहे हैं तो वो हमारी पीठ पर ही उल्टी कर देता है, एंड सो ऑन। सो वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग इज नोन इन चिल्ड्रन, नोन इन नियोनेट्स। If you see that the child is gaining weight, आपको लगता है कि वो और उसका हल्का नहीं हो रहा है, काफी पेशाब कर रहा है, दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है और पेशाब का रंग हल्का है, तो मानकर चलिए कि ये 15, 20, 25, 30, 40 उल्टियां भी नॉर्मल मानी जाएगी, इसको दवा की जरूरत। सेकेंड प्रॉब्लम जो बार बार कहने में आती है, जो मुझे मेरे पेशेंट्स फोन पर बता रहे हैं कि बार बार बच्चा पॉटी कर रहा है। The child is passing motion several times a day. So it's how many times? 30 times, 40 times, 50 times. And mostly when the baby is being breastfed, the child passes motion now and then, in very small amount but very frequently. This is a normal behavior and it does not require any treatment. It doesn't actually need a pediatrician's visit. It doesn't need ORS or oral rehydration solution. So if your baby seems to be growing well, he sleeps well after breastfeeding, number 2, passes frequent urine, and last the urine is pale. That means it is not colorful or dark. It should be normal. तीसरी चीज है कि माँ को दूध कम पड़ रहा है, ऐसी पर समस्या आ सकती है। इस समस्या को मैं 5 से 10 मिनट बाद लेना चाहूँगा। सो नियोनेट में ये 2 ही चीजें आती हैं। कई बार ऐसा बोलते हैं कि बच्चा बहुत गर्म लग रहा है, बुखार है। जो माता के दूध पे है उसे बुखार आने की परिस्थिति एकदम ना के बराबर है। बहुत ही कम पेशेंट्स में भी 200-300 बच्चों में एक हाथ किसी को बुखार आ सकता है। आप देखिए कि एम्बिएंट टेम्परेचर, आप उस कमरे का टेम्परेचर जहां बच्चे का लालन पालन हो रहा है, वह जो कमरा है वो ना बहुत ठंडा रहे ना बहुत गर्म रहे। न्यूट्रल टेम्परेचर 24-25 डिग्री। आप एयर कंडीशनर चला रहे हैं तो 24-25 पे रखिए, आप कूलर चला रहे हैं तो चला सकते हैं। सिर्फ पंखे से मेरे ख्याल से ना दिल्ली में और ना नागपुर में आज बात बनने वाली है। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ते जा रही है, कमरे को थोड़ा बहुत ठंडा रखने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि बच्चा गर्म है, आप टेम्परेचर ले सकते हैं। 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार नहीं होता, उसके ऊपर में बुखार माना जा सकता है। पर बुखार सिर्फ इन्फेक्शंस के कारण नहीं होता, मोस्टली एम्बिएंट टेम्परेचर या कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए बच्चे गर्म लगते हैं, क्योंकि वो स्वेट नहीं कर पाते। इसलिए इन बच्चों को आप एक गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, इनका टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। न्यूबॉर्न्स में ये 2-3 प्रॉब्लम है जो आप घर पे देखकर आप कर सकते हैं, लेकिन रेड फ्लैग साइंस मालूम 2-3 रेड फ्लैग साइंस है। पहला रेड फ्लैग साइन है लिथार्जी, बच्चा बस लेटा हुआ रहता है,
एकदम वो ज्यादा खेलता नहीं है, हाथ पैर ज्यादा हिलाता नहीं है, उसे लिथार्जी कहते हैं। ये एक। दूसरे नंबर पे है कि वो ब्रेस्ट फीड कर नहीं रहा है, माता अपने छाती पे लगा रही है पर बच्चा जो है सकल नहीं कर पा रहा है, ये है 2। और तीसरी चीज है कि वो बच्चे में कुछ झटके जैसे दिख रहे हैं या अजीब सी कोई हरकतें दिख रही हैं। इन परिस्थिति में आप लॉकडाउन में से बाहर निकल सकते हैं। सरकार ने आपको बोला हुआ है कि समस्या अगर है तो आप डेफिनेटली घर से बाहर निकल सकते हैं, बच्चे को लेकर पास के अस्पताल में आप जा सकते हैं। सो रेड फ्लैग साइंस पे ध्यान रखते हुए बाकी चीजों को आप आराम से घर पे चला सकते हैं। रही बात इन्फेंट्स की और टॉडलर्स की, वो जो बच्चे जो 3-4 महीने से लेके 2-3 साल तक के बच्चे हैं, इनकी समस्याएं बहुत रहती हैं। धीरे धीरे ये बच्चे मुंह में उंगलियां डालना शुरू कर देते हैं, हाथ हर जगह पे धूल पे हाथ लगाना फिराना शुरू कर देते हैं। वो गंदे हाथ, धूल से सने हुए हाथ जो हमारी आंखों से तो नजर नहीं आते, वो मुंह में डालना शुरू करते हैं। अब इनके इन्फेक्शंस, इनको अलग अलग इन्फेक्शंस होने का डर है। अब इस माहौल में जहाँ पे बुखार सर्दी खांसी, पीडियाट्रिशियन के ओपीडी में 70% बच्चों को बुखार सर्दी खांसी रहती है, लेकिन उनको किसी को कोविड-19 नहीं रहता। यह सालों साल से जानते हैं, लेकिन ये बात तो हम लोग सालों साल से जानते हैं, लेकिन अब हम लोग ये कह सकते हैं कि सर्दी खांसी बुखार आ गया तो समस्या आ गई, क्योंकि कोविड-19 तो नहीं है। इसीलिए बार बार मैं कह रहा था कि घर को साफ सुथरा रखिए। अगर आपके घर पे इन्फेंट्स है और टॉडलर्स है, 4-5-6 महीने के बच्चे से लेके 3 साल के बच्चे अक्सर ही मुंह में उंगलियां डालते रहते हैं, इसलिए साफ सुथरापन रखने की जरूरत है। बुखार आए तो आपके पीडियाट्रिशियन ने बताई हुई दवा, उस दवा की 1 या 2 बोतलें पास में रखिए। जब भी आपको लगे कि 99.4 क्रॉस कर चुका है, शरीर पर के कपड़े कम रखिए। नंबर 1, पोंछ कर निकालने की जरूरत पड़ी तो पोंछ कर निकालिए। नंबर 2, एम्बिएंट टेम्परेचर कम कर दीजिए। उसका ये मतलब है कि आप उस कमरे का टेम्परेचर कम रखिए। आपके पीडियाट्रिशियन ने दिए हुए पैरासिटामोल के डोज को आप अपने पास में रखिए। अगर आप जानते नहीं है कि पैरासिटामोल का डोज क्या है आपके बच्चे के लिए, तो आप आपके पीडियाट्रिशियन को फोन कीजिए, डोज मालूम करके रखिए, ताकि आप छोटी छोटी समस्याओं के लिए घर से बाहर ना निकले। इन्हीं एज ग्रुप में आपको इन्फेक्टिव डायरिया दिख सकता है, क्योंकि ये माउथिंग बहुत करते हैं। कोई पुरानी कोई कपड़ा है उसको चूस लेंगे, माँ की कोई चुनरी को चूस लेंगे जो शायद पूरी तरह से साफ सुथरी नहीं है, और कल डायरिया हो जाए, पतली संडास शुरू हो जाए, कुछ बुखार आ जाए। यह जो सिम्टम्स है आज के परिप्रेक्ष्य में हमें बड़ी परप्लेक्स कर देती हैं, हमें परेशान कर देती हैं कि क्या ये कोई और बड़ी कोई घातक बीमारी तो नहीं। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, अच्छा भोजन देते रहिए, ताकि वो बार बार इधर उधर पे वो अपनी मुंह और अपने टंग को लगाते ना बैठे। डायरिया की समस्या के लिए घर पे 4-5 पैकेट आप ORS के जरूर रखिए। ORS के 2 पैकेट आते हैं। हर बार एक समस्या बार बार पूछते रहते हैं, मैं बता देता हूँ। 2 पैकेट आते हैं, एक छोटा पैकेट, एक बड़ा पैकेट। छोटा पैकेट पूरे भारतवर्ष में 4 रुपए का मिलता है, आपको 1 गिलास पानी में डिसॉल्व करना है। बड़ा पैकेट 16 रुपए का मिलता है, आपको 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करना है। कोई भी पैकेट लीजिए, लेकिन ठीक से डिसॉल्व कीजिए, दिन भर थोड़ा थोड़ा देते रहिए। तीसरी समस्या जो है इसी समय है, वो वॉमिटिंग की है। वॉमिटिंग के लिए दिन में सुबह एक बार वॉमिटिंग हो गई, दोपहर को एक बार वॉमिटिंग हो गई, रात को एक बार वॉमिटिंग हो गई, इसे या 3 या 4 वॉमिटिंग कभी तो भी 24 घंटा में, इसे इनफ्रीक्वेंट वॉमिटिंग कहते हैं। इनफ्रीक्वेंट वॉमिटिंग का मतलब है कि कोई जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, आप ट्रीटमेंट दे दीजिए। और जो कि उल्टियां हो रही थी जिसके कारण वो उसके पेट में की गंदगी निकल सकती थी, आपने रोक लिया, अब उसका बीमार होना पक्का है। इसलिए कुछ वॉमिटिंग के लिए आप कुछ मत कीजिए। फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग के लिए आप डेफिनेटली आपके डॉक्टर से बात कीजिए। यह एक समस्या है, अभी ये बात क्योंकि मेरे दिमाग में आई तो मैं अभी बता देता हूँ। आपके डॉक्टर्स आपके दोस्त हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बात करने से बात नहीं चलेगी, क्योंकि उन्हें बच्चे को देखना भी है, तो दिखता कैसा है, स्किन कैसा है, क्या हो रहा है। इसीलिए आप आपके व्हाट्सएप या बिजनेस व्हाट्सएप से आप उनके संपर्क में आइए, और एक वीडियो कॉल के थ्रू आप आपके डॉक्टर से बात कीजिए। आपका ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप लॉकडाउन एकदम रेड जोन्स में नहीं है, तो आप घर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आप पास की दुकान में जा सकते हैं। और एकदम लॉकडाउन स्टेट वाली आप जगह पे है, तो आप आपके पास की पुलिस को आप फोन कर देते हैं, तो आपके घर पहुंच आपके पास दवाइयां आ जाएंगी। सो
आप फोन पे आपके डॉक्टर के साथ में रहिए, या बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू आप एक वीडियो कॉल के थ्रू आप आपका एक प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसी समय और एक समस्या अभी कई बार हम लोगों को फोन करके आ रही है कि बच्चा अभी 7 महीने का है, 8 महीने का है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, माँ दूध पिला नहीं पा रही है, दूध के डब्बों की प्रॉब्लम आने लग गई। आप आपके डॉक्टर से बात कीजिए, कौन सा दूध का डब्बा चल रहा था, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है। अभी इस वीडियो कॉल पे या इस वीडियो वेबिनार पे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि किस बच्चे को कौन सा दूध का डब्बा, क्योंकि देर आर सेवरल टाइप ऑफ formulas for several type of situations, but you must talk to your pediatrician and find out and have number of alternatives available with you. Doctors are presently in absolute helpful mode, and they are helping everybody. You can absolutely give a phone call, they'll definitely help you. This is one more time I want to emphasize, मैं फिर से emphasize करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी चीजें बताई थी, कोई भी परिवार ये 3 चीजें नहीं कर रहा है तो समस्या में घिर सकता है. The number 1 is exercise, number 2 is good food, and number 3 is cleanliness. If you are not getting involved in either of these 3 things, you will probably come into trouble tomorrow. We don't want our children to go fat. We want them to exercise. We want them to have good food, and see to it that they are involved, and you yourself are involved in keeping your child in your home absolutely dusted and clean. अब बात आती है उन परिवारों की जहां पर टीनेजर्स हैं, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं. ये तो बड़ा नाजुक समय है. ये बच्चे जो हैं ये घर पे रहना नहीं चाहते, स्कूल में 8 घंटे रहते हैं. माता पिता से ज्यादा उन्हें उनके दोस्त पसंद है, माता पिता से ज्यादा वो अपनी टीचर्स की सुनते हैं. मैं चाहूंगा कि माता पिता अपने आप को बड़ी संजीदगी के साथ में, बहुत ही डेलिकेटली इन बच्चों के साथ में पेश आए. बात बात पर चिढ़े ना, समस्या बढ़ जाती है. हम में से बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े घर है. बाकी लोगों की समस्या है कि 2 बेडरूम के घर होते हैं, 5-5, 6-6 लोगों को बंद पड़ा रहना है, बड़ी चिड़चिड़ाहट रहती है. मैं चाहूंगा कि मदर्स स्पेशली बात बात पे ना चिड़े. फादर जो है वो अपने आप को एक ऐसी भूमिका में ले जहाँ पे वो दिखे कि फादर एक्सरसाइज करते हैं, फादर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं बच्चों से आप, ताकि उनको एक अच्छा, एक साइकोलॉजिकली एक बहुत ही सॉफ्ट और काफी न्यूट्रल सा एक आप उनको एक एनवायरनमेंट दीजिए. I think this is all about it. If there are any questions, this lecture has almost gone for 18 minutes. I think that's good enough of 18 minutes of monologue. I sincerely hope that you have all got it right. मैं मानता हूँ और आखिरी मेरे एंडिंग लाइंस दे रहा हूँ कि see everything you do, whatever can be done, see that you maintain sense of happiness in the family, number 1, and uplift the morale of your children and your spouses. Thank you very much. Thank you, doctor. Thank you so much. In fact, it was a wonderful things which you have shared, and mainly the 3 mantras which you have given, which is that cleanliness, nutrition, have green vegetables, and of course that exercise part of it. So very beautifully, sir, you have summed up that. And in fact, in your opening remarks, you mentioned about this indoor games and continue to exercise at home, which is very, very important. We do agree with that, sir. And I believe, like you have also mentioned about when to raise the red flag. It is also very important, because in today's scenario, one should know, like, now this is the time when we have to raise the red flag. Of course, sense of happiness and morale, and to stay strong and positive is very important in today's scenario. So I would just like to take... Before you end, I can never end. I would just want to thank Dr. Vikram Raghuvanshi. Sir, it is my pleasure, honor, and our pleasure that you could devote time, and it was very enlightening. Thank you so much. Yes, sir. Because of Dr. Vikram Raghuvanshi, I am there in front of all your polymedians. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And sir, I'll just take your 2 minutes if I'm allowed to do so. I'll just give us a little brief about our organization. We are a public limited company. We are the only medtech company which is listed on Bombay National Stock Exchange, and we produce many medical devices which are used for infants, for children, and primarily all these products are DEHP free. As you know, like, it is a carcinogenic agent. So we produce all DEHP free products,
And in 2018, we got the award as the Best Medical Device Company of the Year. So it was an honor for any Indian company to get this award. And very recently, we have been rated among the top 25 industrial innovative companies. We have plants. We have 6 plants in India. We have plant in China, Egypt, and Italy. So this is in the nutshell about the organization, and definitely our team would be reaching you. And thanks for all the inputs which you have given to us. Thank you so much. And sir, your next visit, we will like you to visit our one of the manufacturing unit. Yes. It is something which is worth visiting, and I can say that it is par with best of the infrastructure that we can see in any part of the world. Sir, invitation kabul kar liya. मैं Dr. Kiran. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Dr.